Good evening, class. Okay, so we are done with multiplication, right? Now next point is transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Okay, let us see what is this. It is the matrix which is obtained by interchanging rows and columns of a given matrix. It is if A is any matrix, then its transpose is denoted by its transpose matrix is denoted by A or A transpose. Sorry, A dash or A T. One and the same thing. Simple definition. For example, there is a matrix A. Say this is the matrix. And you have to write its transpose. Okay. Then what is the definition? You will have to interchange the rows and columns of given matrix. So I can write it like this. First column of the given matrix is now the first row of transpose matrix. Okay. Only this line is important. Interchanging rows and columns. Second column will change to second row and third column will change to third row. And in the process, you will be writing the transpose of the matrix. Okay. Simple definition. Now based on this transpose, there are few important properties. Okay. Properties of transpose. First property, see what is the meaning of first property. The meaning is that transpose is taken two times. Okay, first you take transpose of matrix A and then you again take its transpose. So obviously rows and columns will interchange two times. That means it will come back to the original matrix. Okay, for example, if in this case I take its transpose, okay, if I take transpose of A transpose, what I will get? First column will change to first row 1 2 3, and second column will change to second row, that is 4 5 6. Correct? So that's simple. Then second,
if two matrices are added or subtracted and their transpose, the whole transpose is taken, this is transpose, this is not any power, okay, then this is the result. This is called distribution. Obviously plus and minus should be defined. Now you know that when a plus b and a minus b will be possible, when both will be of same order, this you know, okay. So obviously it is understood that a plus minus b exists. So if it is plus, plus will come in right hand side. If it is minus on LHS, it will be minus on RHS. So two properties are written in a single step, okay. If there is plus in LHS, there will be plus on RHS. If there is minus on LHS, there will be minus on RHS, okay. We'll be using these properties in questions. Then there is this property where k is a scalar. See, I told you, whenever there will be capital alphabets, they will stand for matrices, okay. Now here I have written that k is a scalar. A is matrix, k is scalar, okay. So what is the meaning of this property? That if a scalar is multiplied by a, if a matrix is multiplied by some scalar and whole transpose is taken, okay, then that scalar can be taken out of the transpose. It has no effect. All these can be understood with the help of example. See, let me take one example first. Suppose a is 1 2 3 4 and let's say b is 1 0 1 2, okay. Let me tell you how we'll verify second property. So what is a plus b? A plus b means 2, so 2 4, correct. So what about the whole transpose? A plus b is a matrix, okay, and you are taking its transpose. Transpose means you are interchanging row and column. This is the value. If in the same question you want to find AT plus BT, A transpose means, now you know how to write transpose, correct? So A transpose is 1 3 2 4, B transpose is 1 1 0 2. Add these two. This is 2 4 2 6. What do you observe? Both are same. That means second property is verified, okay. Likewise you can do. Take suitable example and you will be able to do it. Then fourth one, A into B, product of two matrices. And what is the result? B transpose A transpose. See, it is called reversal law. Reversal law in the sense that the order of A and B is reversed when we write RHS, okay. In the left hand side it is AB transpose, but when you write right hand side, transpose of B comes first and then A, okay. Can anyone tell me what will be the effect if I write ATBT? It should be same. These two are same. What is the problem, right or wrong? Can anyone explain that whether I can write it as A transpose B transpose as well? Anyone? Why I have written reversal law? Why can't I write A transpose B transpose? What is the problem? Yes, correct. Because multiplication is not commutative. That is the reason. Multiplication is not commutative. So both are different. Okay, they are not same in matrices. Now you can easily verify with these examples. Okay, you can take these two example A and B. Okay, these same example and you can easily verify this. However, there is one generalization also when there can be any number of matrices. Okay, there can be any number of matrices and
if you have to use this result, so what will be the meaning? First the transpose of last matrix will come and this process will go on like this, then A3 transpose, A2 transpose, A1 transpose. General result means it is not only just true for two matrices or three, it is true for all the matrices, any number of matrices, but obviously their multiplication should be defined. And based on that we have fifth result, A to the power n transpose is equal to A transpose to the power n, where A is a square matrix and n stands for natural numbers. Now from where fifth is coming? Fifth is coming from the general result of 4. In place of A1, A2, A3, write A every time. Okay. Read all as A. So A1 is A, A2 is A, A3 is A. So what will be on LHS? A into A into A into A and so on. That means A multiplied by itself n times. That is A to the power n transpose. And what about the right hand side? It will be A transpose every time, right? So A transpose will occur how many times? N times. So how you will remember the result? Fourth one, that n and t can be interchanged. Okay. So for example, if someone writes A to the power 5 transpose or writes A transpose to the power 5. A transpose to the power 5 means A transpose multiplied itself 5 times. And what is A5 transpose? LHS. That means first you multiply A with itself 5 times, a matrix will come, and then takes transpose, it is one and the same thing. Okay. So properties are extremely important. Whenever you have to verify these properties, they will not come for proving. Proofs are not in the syllabus of board exams. Objective, obviously they can't ask the proof. Okay. But their application is very important. Okay. Let us take one question. Just try to verify this. Suppose A is this and B is 1, 3, minus 6. Then verify. We are verifying for property that AB transpose and B transpose A transpose will come same. Try this because you know how to multiply, right? Solve this.
What's wrong? Yes. That's volume up. And the other one scroll up. Please keep yourself muted if there is no doubt. Oh, okay. You're waiting for them to answer. Okay. No, I just came in. I had no idea what was going on. 30 minutes already passed. Oh, it's 4:18. 4:18. You are supposed to keep yourself muted. How many times I have to tell you this? See, first of all, let us multiply AB. Okay. Can multiplication be done? What is the order of this matrix A? 3 into 1. What is the order of the second matrix? 1 into 3. Okay. So multiplication is possible and it will be a 3 by 3 matrix, right? 3 by 3 matrix. Fine. How you write? First row, first column, minus 2 into 1. So minus 2 will come. Then first row, second column. So minus 6, then 12, and likewise. So 4, 12, minus 24, and 5, 15, and minus 30. Okay. This is A into B. Now take its transpose. Transpose means you interchange rows and columns, right? So AB transpose is, take transpose of this matrix, minus 2, 4, 5, minus 6, 12, 15, 12, minus 24, minus 30, correct? This is your LHS. Now we have to find RHS, that is B transpose A transpose, and we have to show that both are equal. B transpose, it is a row matrix, okay? 1, 3, minus 6. So when you take its transpose, it will become 1, 3, minus 6. Column matrix, correct? And A transpose, it will change to a row matrix, minus 2, 4, 5. This is B transpose, A transpose first. Now you multiply both of them, you will get the same result. Multiply first row, first column, then first row, second column, first row, third column, right? This is how you multiply. This is minus 6, then 12, then 15. Same numbers will be coming. 12, minus 24, and minus 30. Okay. So this shows that AB transpose is B transpose A transpose. Correct? Anyone having any doubt in this? So like this you can verify the property. These type of questions are asked in board exams. Okay. Verify, prove that. Okay. Such type of questions you'll see in NCERT. Now after this, based on this transpose, there are two important matrices that are symmetric and skew symmetric matrices. Okay, these two, symmetric and skew symmetric. First, let us try to understand what are symmetric matrices. Symmetric matrix. So any square matrix A, is called symmetric. That means it must be square matrix. Okay, any square matrix A is called symmetric if A transpose equals A. Okay, if A transpose equals A, that means if there is a square matrix which is equal to its transpose, okay, it is called symmetric matrix.
And how to construct that? Construct a symmetric matrix. We use that Aij is equal to Aji for all I and j. What is the meaning of this? I will explain this with the help of example. Okay. So it must be a square matrix and its transpose must be equal to itself. Then it will become symmetric matrix. Okay. And in symmetric matrix, this condition is satisfied. This stands for elements Ai, J, Ji. You already know how to represent a matrix. Okay. So for example, if I take this, then it is a symmetric matrix. You know why? Because this condition is satisfied. Which condition? This condition. That A11 is 2, A2 first row second column element, right? A21 is 3 and A22 is 1. So you see that these two are equal, right? A12 and A21 here. In place of I and j, you put 2 and 1 or 1 and 2. So you will get this result. Now if you put 1 and 1, if you put 1 and 1 in place of I and j, then what will happen? If you put 1 and 1, it will be A11 is equal to A11. That is true. Every element is equal to itself. Okay. So A11, A22, they will be equal to itself. That is why you can have any values. But non-diagonal elements, now you know what is diagonal, non-diagonal, right? For non-diagonal element, this is important. A12 is 3, A21 is 3. They should be equal. Only then it will become a symmetric matrix. You know why? Try to take its transpose. Observe first column of the given matrix. First column contains 2 and 3. I am writing them in the first row because I am taking transpose. Now consider 3, 1. That is second column. Okay. Second column of the given matrix. It will become row of A transpose. What do you observe? Both are same. Okay. So even if you are taking transpose, it is coming out to be same. That is why it is symmetric matrix. Okay. So this is the definition that matrix should be equal to its transpose. What type of matrix? A square matrix. And how you will construct? For that you will remember this Aij equals Aji. Similarly, if I have to construct a 3 by 3 matrix, you know what I do? First of all, I write these any 3. Why? Because diagonal elements, when in case of diagonal elements, what happen? You put 1, 1, 2, 2, 3, 3. So on both sides you get the same terms. A22 is equal to A22, A33 is equal to A33. So that means any element is equal to itself. That is true. But when you are writing other elements, no, then this formula will be important. Suppose this is 5. Suppose this is 5. Okay. And suppose this is 6 and this is 7. So if I take these three elements, no, now 5 is A12. First row, second column. So if it is 5 and A is symmetric, so this must be 5 now. Because A12 and A21 should be same. Correct? Similarly, A13 and A31 should be same. Now what is A13 in this example? First row, third column element. That is 6. So that is why this must be 6. Similarly, this should be 7. Okay. If you want to take the transpose, you will see that it will come out to be same. 1, 5, 6. The column will change to row. Second column changes to second row. Third column changes to third. See. But still what you get? Same. So this is also a symmetric matrix. This is of the order 3 into 3. Previous example was of the order 2 into 2. Okay. Like that. So I hope this is clear. Symmetric matrix. And since it is related to transpose, that is why we have to study transpose first and then we come to symmetric matrix. So could you scroll up a bit? Sorry?
Could you scroll a little bit the slide? Previous slide. I'm not able to hear you. Please be clear. Yes सर, वो previous slide थोड़ा दिखा. This question. नहीं सर, वो टॉपिक लिखना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर का. Okay, okay. हाँ सर, थैंक यू. ऑलराइट, चलो आगे. तो ये हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फिर इन दोनों मैट्रिसेस और वो जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल. इसको और समझ लेते हैं, बहुत आसान है. इफ A is any square matrix such that A transpose is minus A naught, okay, then A is skew symmetric. तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है बस. then A is skew symmetric. और इसको कंस्ट्रक्ट करना और आना चाहिए. टू कंस्ट्रक्ट skew symmetric, to construct skew symmetric matrix. इसमें क्या करना होता है, कैसे लेते हैं एलिमेंट्स. Aij is equal to minus Aj, where I not equal to J. So for example, let us start with a 2 by 2 matrix. अब ये कैसे हो गया स्क्यू सिमेट्रिक? ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों हो गया, इसको जानने के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू जे. आई और जे जब बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो डायगोनल एलिमेंट बनेंगे, जैसे A1 1 A2 2. तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो बचे हुए कैसे होने चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट. नॉन डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए. इक्वल अपोजिट मतलब जैसे 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसा. अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों बन जाएगा? देखो इसका ट्रांसपोज लेके देखो. ट्रांसपोज लोगे, पहला कॉलम पहली रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगा, राइट? Anyone have any doubts? ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका ट्रांसपोज लिया. अब हमें ये शो करना है कि A t इज इक्वल टू माइनस है. सो व्हाट वी विल डू, इसको ना पहले ऐड कर लो. A और A ट्रांसपोज को ऐड कर लो. ऐड करना तो आता ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं. तो देख लो आराम से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो क्या बनेगा. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. A t इज O माइनस A. अब तुम जानते हो कि O का मतलब सारे एलिमेंट जीरो, तो O माइनस A का मतलब क्या निकलेगा? माइनस A तो निकलेगा. ये प्रूव हो गया. तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको, ये दोनों कंडीशन है ना, डायगोनल एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल और अपोजिट. तो ऐसा करके जो मैट्रिक्स बनाओगे इक्वल एंड अपोजिट किस रूल से, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई. ठीक है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, आई हैव टेकन द एग्जांपल एज वेल. इसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट इन स्क्यू सिमेट्रिक? तो पहले क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी यूज़ होती है. पहले एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग. क्वेश्चन है, इफ़
A and B are symmetric So could you matrices. scroll slightly up to the example? Mhm. ये देखो, ये क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हमें देखना है, ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। इसको एक बार ट्राई करो कॉपी, प्रॉपर्टी से प्रूव करना है जनरली ए और बी में रखकर। ए और बी दे रखे हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के, तो ए बी प्लस बी ए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये बताना है। ट्रू आ रहा है, लेट अस चेक। देखो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो देखो, गिवन A transposes A and B transposes B, ये गिवन है। क्यों? क्योंकि दे रखा है A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या करो, इसको एक मैट्रिक्स ले लो, ये X क्या है, ये मैट्रिक्स है, इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। जैसे A और B को मल्टीप्लाई करोगे अगर, ओके, इफ यू विल मल्टीप्लाई A एंड B यू विल गेट अ थर्ड मैट्रिक्स A into B, जो भी होती है। ऐसे बी ए से भी एक मैट्रिक्स आएगी, तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इनका प्लस भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका मैंने एक्स नाम अज्यूम कर लिया, लेट इट बी एक्स, एक्स मैट्रिक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ये देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी ये एक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मुझे बेसिकली ये चेक करना है। देखो इधर
मुझे चेक करना है कि एक्स ट्रांसपोज और एक्स बराबर हैं कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ एक्स ट्रांसपोज ले लेता हूँ। एक्स ट्रांसपोज लिया, सबसे पहले हम इसमें प्लस पे ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज विल कम इन यूज, ओके। प्लस पर ट्रांसपोज ऐसे, विच प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग, क्या अगर यहाँ पर ट्रांसपोज लग रहा हो प्लस पे तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बताया था। तो अभी पहले प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करो, एक साथ मत लगा देना सारी प्रॉपर्टी। प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट किया और ये टी अलग अलग आ गया, राइट। अब रिवर्सल लॉ लगेगा, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ। एंड फाइनली यू विल यूज द गिवन कंडीशंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बी हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को देख के कोई भी बता सकता है कि एक्स और एक्स टी सेम है। अब ये तो कह मत देना कि सर ये सेम कहाँ है, वो तो ए बी प्लस बी है और ये बी ए प्लस ए बी है, ये तो सेम ही होगा ना। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कंफ्यूज मत हो जाना सर ए बी की जगह बी ए कैसे आएगा, ये प्लस है यहाँ पर, ए बी प्लस बी ए, और ये क्या है बी ए प्लस ए बी, तो एक ही बात हो गई ना। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है। सो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, राइट। दिस मीन्स एक्स इज सिमेट्रिक। एक्स कौन, जो क्वेश्चन है, ए बी प्लस बी, यानी ट्रू स्टेटमेंट होगा। स्टेप देख लीजिए, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है आस्क। Any doubt in this? Okay, then we take the next point. ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का थ्योरम है, ये थ्योरम 1। इफ A is any square matrix, A is any square matrix, then A plus AT is always symmetric. A minus AT is always skew symmetric. फर्स्ट थ्योरम, ये एनसीईआरटी में भी इट कैन कम इन बोर्ड एज वेल, ओके। और रिजल्ट तो यूज़ हो ही सकता है कहीं भी, थ्योरम का यूज़ तो कहीं भी क्वेश्चन में हो सकता है। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट सपोज यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तुम उसमें अगर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड करोगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। एग्जाम्पल से देखो, जैसे सिंपल 1 2 3 4, ये वेरिफिकेशन है, ये प्रूफ नहीं है, ओके। जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गया, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3 2 4, ठीक है। ये आपका ए ट्रांसपोज है। अब आप इसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 1 2 3 4 में उसका ट्रांसपोज रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते ना, तो क्या बन जाता है, 1 और 1 से 2 आ जाएगा, ये 5 ये 5 ये 8।
देखो ये मैट्रिक्स कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई। सिमेट्रिक पहचानते हो ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट तो खुद ही के इक्वल होंगे, यानी उनका आपस में इक्वल होने से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम है। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। तो मैंने इसे रैंडम कोई मैट्रिक्स मानी थी, उसका ट्रांसपोज ऐड किया, सिमेट्रिक आ गया। ऐसा हमेशा होगा अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ए माइनस ए टी। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो क्या आएगा, 0 -1 1 और 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 आते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो इट इज़ नॉट अ जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे, कितने भी ऑर्डर की लोगे, उसमें ट्रांसपोज ऐड करोगे सिमेट्रिक आएगा, उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। We can prove this also, just like the previous question. Let x equals a plus a transpose। बताया था अभी, दो मैट्रिसेस का सम एक मैट्रिक्स ही होगा, और सिमेट्रिक देखना है तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इस स्टेप को आप बोल सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो ये तो हो गया, एक्स ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसमें पहले प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कर दिया, करेक्ट। वही प्रॉपर्टी आप लिख दोगे ब्रैकेट में, सिंस A plus B transposes A transpose B transpose, and in that you can write as AT plus A, because you know that transpose of a transpose is matrix itself, correct। अब क्या समझ में आया, 1 and 2 से बराबर हो गया कि नहीं। From 1 and 2 xt equals x, ये that means x is symmetric, x मतलब कौन, A plus AT। इसी तरीके से आप ए माइनस ए टी को कुछ वाई वगैरह लेके स्क्यू सिमेट्रिक दिखा सकते हैं, उसमें साइन, जैसे लेट फॉर सेकंड वन y इक्वल्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ, फिर से वही सेप डिस्ट्रीब्यूट होने वाला लॉ लगेगा, माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे प्लस पे होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख पाओगे, ए टी माइनस ए। नाउ ए टी माइनस ए इज एक्चुअली माइनस ऑफ ए माइनस ए टी, करेक्ट। दैट मीन्स माइनस ऑफ वाई, ये इसका मतलब एक ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वाई कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये मतलब हो इसका। ये है प्रूफ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, दिस इज द क्वेश्चन। This is theorem, this can come for proof, that is why I have given it, it is there in NCERT, okay, and you have to prove it in the same way, and you have to remember the result also, it can be applied anywhere, it is like a property, theorem, whatever you say. Any doubt in this? Anyone having any doubts? Okay, then we move to the next theorem. दो theorem है इसमें, this is theorem 2. Any square matrix can be expressed as a sum वो of a माइनस ए टी वाला पार्ट लिख रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। चलो करो।
इज इट डन? ओके भाई, Yes. ठीक। देखो अगली जो थ्योरम है वो क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, उसको तुम दो पार्ट में लिख सकते हो, उसको दो मैट्रिसेस का प्लस करके लिख सकते हो, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे पहले मैं प्रूफ देता हूँ फिर मैं उसका एग्जांपल लेके देखूँगा। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर अब देखना है यहाँ पे, अगर मैं ए को हाफ इंटू टू ए लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ इंटू टू 1 होता है तो अभी भी ए ही लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2a को a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैं इस ब्रैकेट में कुछ ऐड कर दूँ और कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ उतना ही, तो मैथमेटिकली तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। मैंने इसमें ए ट्रांसपोज ऐड किया है, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया है, यानी अभी भी वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था। बेसिकली ए ही लिखा हुआ है, तभी ये ए के इक्वल चलता आ रहा है। अगर उल्टा चलोगे तो ए पर ही पहुँच जाओगे, समझ रहे हो? अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके एक तो ए प्लस ए टी लिखो और एक हाफ से मल्टीप्लाई करके a माइनस ए टी। इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि इससे रिलेटेड रिजल्ट पिछले वाले में पढ़ लिया। अब ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है तुमने, ये और ये जो तुमने लिख दिया कि हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें कोई बोले ये पहले वाला क्या है, ए प्लस ए टी अभी पढ़ाया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका नेचर नहीं बदल जाएगा, अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हाफ का मल्टीप्लाई सभी से होगा इसीलिए। इसी तरह से a माइनस ए टी कैसे होती है पिछली थ्योरम से, स्क्यू सिमेट्रिक, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो ये आपने क्या प्रूव कर दिया, ये सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स लगा के क्या प्रूव कर दिया? आपने प्रूव कर दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो मैथ्स में, उसको आप दो मैट्रिसेस के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और कैसे लिखी जाएगी? जैसे कि बॉक्स में लिखी हुई है उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से कोई सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3। तुम कोई और भी ले सकते हो, ऑर्डर भी बड़ा कर सकते हो, अभी समझा रहा हूँ तो सिंपल एग्जांपल ले लो। ये ए है, ठीक है। अगर ये ए है तो ए टी क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 1 3 2 4, है ना। अब यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा 2 5 5 8, ठीक है। फिर उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर लो। अब जब तुम हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम जानते हो कि हाफ से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हर एक एलिमेंट का हाफ से मल्टीप्लाई, ये कह रहा था। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए a माइनस ए टी निकालते हैं पहले, तो वो आएगा 0 माइनस 1 1 0। फिर उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई करने वाला हर एक एलिमेंट का हाफ से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आ गए, दोनों आ गए हाफ वाले। अब तुम देखो नाउ ये जो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैं लिखने वाला हूँ ऐसे, दिस प्लस दिस। अब तुम राइट साइड वाली मैट्रिसेस हैं दोनों को जोड़ लो, राइट साइड वाली जो मैट्रिसेस हैं दोनों को ऐड कर लो, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स पे आ जाओगे। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए को ना दो मैट्रिसेस के प्लस के फॉर्म में लिखा है। और ये कैसी मैट्रिसेस हैं, ये सिमेट्रिक है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये लिखा हुआ। ठीक है। सो एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। को दिख रहा होगा ना, सिमेट्रिक क्यों है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा दोनों सेम है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, डायगोनल एलिमेंट 0 है और बाकी इक्वल और अपोजिट है। और ये तो थ्योरम है। अब इसको आपको इस तरह से पेपर में लिख के आना हुआ करेगा,
वो एक मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस के फॉर्म में लिखिए, तो बिल्कुल यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको नोट करना है करो। So could you show the proof, the theorem to from there? Just ये प्रूफ scroll ही up तो लिखा to हुआ the है उसके, इट्स ऑन द स्क्रीन, प्रूफ लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। So he is asking to zoom it. ये विजिबल नहीं होता है क्या तुम लोगों को? अब देख रहे हैं? yes, so example you can show. Is it done? Yes, so Okay, solve this one question. If a 5 2x y z minus 3 4 t minus 7 is symmetric matrix, then find values of x, y, z and t. Solve this question.
Is it done or not? What you can do? You can write AT as A, correct? Because matrix is symmetric. So what is A transpose? Take transpose of this 5y4 2zt x minus 3 minus 7, and you equate it to A. 5 2x y z minus 3 4 t minus 7, and you will be able to find x y z very easily. See, what is y? Y will be 2. What is x? X is 4. You compare the two matrices, right? X will be 4 always. What about t? T will be minus 3. You can find it from any element. You can take this also, right? But one thing you observe, okay, when you compare the two matrices, y is 2, x is 4, t is minus 3, but every time you will be getting z is equal to z, okay? You are getting z is equal to z, nothing else, and you can't anything else apart from this. No other information is given. तो कोई नंबर खुद के बराबर तो होता ही है. एनी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ. तो फिर क्या लिख दें? व्हाट वी कैन राइट हियर, z कैन बी एनी, z कैन बी एनी वैल्यू, एनी नंबर. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, नंबर वैल्यू पता नहीं क्यों. बट y x and t can be calculated directly, okay? But for z we have no other information, and both side it is z is equal to z. So for this we will write this sentence, it can be any value or any number. Okay, simple use of definition of symmetric matrix. ओके, सो इसमें तो यही है, और इस पर बेस्ड जो अपनी एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की, दैट विल बी एक्सरसाइज 3.3. ओके, 3.3 जो एक्सरसाइज है ये होमवर्क है, इसको कर लेना ज़रूर ध्यान से. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी, जब भी हो, कल हो या कभी भी हो क्लास. कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी, जितना भी था उसमें मैंने आपको करा दिया. अब मैं आपको पहले ना वो क्वेश्चन करा देता हूँ जो कल पिछली क्लास के 3 प्रोडक्ट वाले सवाल बचाए फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. 18, 19 एंड 20, ये 3 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, ये दे रखा है आपको 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड 0. आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इसका मतलब आपको लिखना चाहिए था 1 0 0 1, और यहाँ पर आपको प्रूव करना है. ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का सवाल तो है ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल है. ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको. ये शो करना है कि दोनों बराबर होंगे जो यहाँ पर लिख रहे हैं. तो पहले LHS लिख लो. LHS तो सिंपल ही आई प्लस ए.
यानी आई वाले एलिमेंट्स में ए वाले एलिमेंट जोड़ने, दोनों 2/2 के ऐड करना आपको आता ही है। 1 में 0 जोड़ा 1 आएगा, फिर -10α/2, फिर 10α/2 में 0 और 0 में 0। आई प्लस है तो डायरेक्ट आ जाएगा ईजिली। अब बात बचती है ये जो दूसरा वाला टर्म है इसकी, ठीक है। तो RHS में एक तो i-a में लिख रहा हूँ, अब तुम भी देख लो, i-a लिख रहा हूँ, मतलब आई वाले एलिमेंट में से ए वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। आई कम्स फर्स्ट देन -a, सो 1 - 0 1 रहेगा। 0 माइनस ऑफ -10α/2 दैट मीन्स प्लस। सब्ट्रैक्ट करना तो सभी जानते हैं ना, i-a निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला टर्म। देन -10α/2 एंड 1 - 0 इज 1। इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे किया जाता है, और वहाँ पे फिर फाइनली आंसर सेम लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का cos अल्फा से होगा और 10α/2 का sin अल्फा से होगा। फिर दूसरा वाला टर्म जो आएगा -sin अल्फा × 1 प्लस cos अल्फा × 10α/2। उसके बाद आएगा यही टर्म आएगा जो लिखा हुआ है, जो टर्म अभी लिख के चुके हैं वही टर्म आएगा फिर से, और इस वाले में आएगा, इसमें वो टर्म आएगा जो फर्स्ट टर्म था a11। यानी कुल मिला के 2 टर्म निकालने अपने को, sin अल्फा/2 sin अल्फा 10α/2, एक मिनट, sin अल्फा 10α/2 प्लस cos अल्फा, ठीक है। ये तुम्हारा RHS आ रहा है, और LHS तो ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मैं टिक कर देता हूँ, ये LHS है, दोनों को लाना है सेम। तो अब LHS को तो क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। RHS में जरूर ये टर्म आ रहे हैं बड़े बड़े, इनको सिंप्लीफाई करना। इसके लिए आपको यूज़ करनी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ करनी है उसमें एक बार तुम देखो कि इस टर्म की वैल्यू ना, ये जो टर्म है और ये टर्म है सेम है, और आएगा भी। एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गई है मेरे से, i+a लिखने में। जब हम i+a करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, आप भी देख सकते हैं, है ना। अब ये कैसे पता चल गया कि दोनों सेम है, दोनों मतलब 1 होना चाहिए, क्योंकि अभी जब मैं ग्रीन पे अंडरलाइन कर रहा था तो दोनों टर्म सेम है, तो उधर भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रूव करना है इक्वल। अब ट्रिग्नोमेट्री देखो क्या यूज़ हो रही है। मैं इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, वरना पूरा क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा बार बार। इसमें लगाएंगे हम कुछ फॉर्मूले जो होते थे cos 2a के और sin 2a के फॉर्मूले। तो पहले वाले में cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा cos² अल्फा/2 माइनस sin² अल्फा/2। cos 2a का जो 4 फॉर्मूले होते थे उनमें से एक। tan अल्फा/2 को आप लिख लेंगे sin अल्फा/2 अपॉन cos अल्फा/2। tan होता है sin अपॉन cos, और इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगा के लिखेंगे 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा cos² अल्फा/2 माइनस sin² अल्फा/2 प्लस, ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, sin अल्फा/2 × 2 sin अल्फा/2, 2 sin² अल्फा/2 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड और थर्ड टर्म को ऐड करने पर ये, और ये बन गई आइडेंटिटी मतलब 1। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट 1 बन जाएगा। तो ये तो हुआ पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर और यहाँ पर 1 कैसे आएगा। ठीक है, अब जो बचे हुए 2 टर्म है ना, बचे हुए जो 2 टर्म हैं वो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई एक सॉल्व कर लो, क्योंकि दूसरा उसका ऑपोजिट है। ये देखो, ये जो ब्लू से अंडरलाइन किए हुए हैं इसमें साइन, पहले वाला जो ऊपर वाला है उसमें साइन अल्फा के साथ माइनस है और कॉस वालों के साथ प्लस है, इसमें उल्टा हो रहा है, साइन के साथ प्लस है और कॉस वालों के साथ माइनस है। वो तो होना भी है, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसको देखो यहाँ पर, ये देखो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। यानी अगर मैं कोई एक प्रूव कर दूँ तो दूसरा प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वही उसी का नेगेटिव होगा। तो मैं इसमें ना ये वाला पार्ट जो बिलो वाला है, देखो इसको मैं रेड से ही अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, ये साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी लेके आनी होगी, 10 अल्फा/2 के बराबर लानी होगी। ठीक है, इसको और देख लीजिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी।
दिस इज साइन अल्फा माइनस साइन कॉस में ले जाओ इसको। यहाँ पे साइन 2a कॉस 2a का फॉर्मूला नहीं, उसकी वजह ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे ये बन जाएगा। और अगली स्टेप में आंसर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पता है ऊपर क्या बन गया, जिसको फॉर्मूले याद है वही बात है। ट्रिग्नोमेट्री साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर। इसको कैसे पढ़ोगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यानी ये बन गया। इसका मतलब देखो टेन अल्फा बाई 2 प्रूव हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शायद आप नहीं लगा पा रहे होगे, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा। तो क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख देता हूँ टेन अल्फा बाई 2, तो मुझे वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका नेगेटिव है तो माइनस ही आएगा। और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें जो नोट करना कर लो यहाँ पर। इसको देख लें, क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये सवाल, बोर्ड में आ सकता है बिल्कुल। तो आप भी पेपर में साइड में वर्किंग करके दिखाएंगे, साइड में मतलब रफ में नहीं, फेयर पेज पे ही कहीं ये साइड में आप सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ देख रहे हैं तो सॉरी स्क्रॉल डाउन। दिखाई दे, ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला। सुनो सर डाउन। डन सर, थैंक यू सर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नाइनटीन्थ, देखो जो ये 19th और 20th क्वेश्चन है ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। बस आपको लैंग्वेज को ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है 19th, आप लैंग्वेज तो वहीं से पढ़ लें। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ओके, तो आपको 30,000 इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट बॉन्ड में मान लो आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए, तो सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट कर लोगे? 30,000 माइनस एक्स रुपीज, ये इन्वेस्ट। अब फर्स्ट बॉन्ड से कितना आता है इंटरेस्ट? 5% पर ईयर, पर एनम हो गया ना। वही जो 8th 9th में सवाल करते थे सिंपल इंटरेस्ट, बस उसी को मैट्रिक्स के पर ना। एप्लीकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब ये 2 सवाल हैं, एक सवाल नहीं 2 सवाल हैं। एक बार तो सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं 1800 रुपीज़ और दूसरी बार ये चाहते हैं 2000 रुपीज़। तो देखिए फॉर्मूला होता है PR
T बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा होता है। ध्यान से देखना सभी लोग, यही इंफॉर्मेशन लिखनी है, यही इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब इन्होंने क्या बोला है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पर एनम दे रखा है ना। हाँ, ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट। सो हियर टी इज इक्वल टू 1 ईयर्स। अब टी इज इक्वल टू 1 ईयर्स है ना, तो इसका मतलब अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ के लिए, इतना रह जाएगा। अब 1/100 क्या है, 1/100 तुम्हारा है स्केलर। अब देखना ध्यान से कैसे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा। 1/100 लिखा, प्रिंसिपल की मैट्रिक्स बनाओ। तो प्रिंसिपल तुम्हारे पास दो हैं, एक x है और 30,000 माइनस x है। x 30,000 माइनस x, ठीक है। और हमने ये बना ली है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स बना लिया, मतलब अब हमने ये बना लिया है एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम। इसका मतलब अब हमारे को अगर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें आर की भी मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स क्यों बनानी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सवाल करना है। तो अब हमारे को आर चाहिए। आर जो हमें चाहिए वो, उसमें जो एक मेन बात है वो ये कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर, ठीक है। सॉरी, सेकंड के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है ना, तो 2 रोज चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है और इसके अकॉर्डिंग वो 1/1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि राइट साइड में जो ए पार्ट है उसमें 800 लिखा है आपको, 1/1 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट नंबर है ना इसका वो होगा 1। क्यों, क्योंकि तभी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 1/1 की आएगी, जैसा कि लिखा हुआ है। तो अब जो लास्ट में तुम्हें करना है, तुम्हें यहाँ पे प्रिंसिपल लिखने हैं। अब क्योंकि x वाला अमाउंट का मल्टीप्लाई इस वाली नंबर से होगा जो तुम यहाँ लिखोगे, और 30,000 माइनस एक्स वाले का इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो इसकी वजह से तुम्हें ऊपर वाले डैश की जगह x वाला प्रिंसिपल लिखना होगा, यानी 5 लिखना होगा। और नीचे वाले में क्या वैल्यू रखनी होगी, नीचे वाले में वैल्यू 7 रखनी होगी, ठीक है। 5 7, बस अब हो जाएगा। इसमें 5/100 मत कर देना, अपॉन 100 पहले से ही बाहर है। अब ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। तो जैसा कि बताया कि 1/1 की मैट्रिक्स, तो x का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 7 का मल्टीप्लाई 30,000 माइनस एक्स से होगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसको इधर कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1/1 की मैट्रिक्स ही तो बनेगी। तो ये 1/100 के साथ ये कितना है ऊपर, इसमें ब्रैकेट लगा लेना वरना कन्फ्यूजन होगा। 30,000 था, 2,10,000 माइनस 2x, और ये अब तुम जानते हो कि स्केलर का मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से होता है, लेकिन है तो यहाँ एक ही एलिमेंट ही है बस, तो कोई बात नहीं, उसको भी डिवाइड कर लो। और अब क्या करने को रह गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो ही गया था, कंपेयर करके x निकालना रह गया। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा, वहाँ 1800 की जगह 2000 लिख लेना, कंपेयर करके x आ जाएगा यहाँ से। तो जब x आ जाएगा तो बेसिकली वो अमाउंट आ जाएगा जो तुम्हें 5% पे, तो दूसरा भी आ जाएगा। अब ये कितना है, 2,10,000 है, माइनस ये है इधर कितना है, 1,80,000 है, फिर तो सब्ट्रैक्शन है, इधर 30,000 बचेगा, ये 2x हो गया, तो x कितना आ गया, 15,000। इसका मतलब तो भाई पहले पार्ट के लिए तो अदर अमाउंट, ये फर्स्ट बॉन्ड में भरा जाएगा, है ना। फर्स्ट बॉन्ड में x डालना था तुम्हें, सेकंड बॉन्ड में भी कितना होगा, 15,000 ही होगा, 15,000 ही होगा। क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट कितना था, 30,000। तो 1800 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपीज़ लगाए गए होंगे। अब जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, उसमें जहाँ पर राइट साइड में मैंने 1800 लिखा है, तुम 2000 लिख देना, तो वो वाला हो जाएगा पार्ट। इस तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, फिर नीचे वैसे तो एक बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया, मतलब ये वाली जो स्टेप है ब्लू वाली, ये मेन है,
अगर आपने ऐसे लिख लिया तो उसके नीचे तो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर करके कंपेयर करके निकालना, मेन तो यहीं तक है। फॉर्मूला बता दिया, उस तरह से लिख लो। So please scroll down. Is it done? No, sir. Done, sir. Thank you, sir. ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास भी। होमवर्क बताई दिया है नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। अब ये भी आसान सवाल है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाना है। क्वेश्चन में ये है कि कुछ बुक शॉप पे बुक्स हैं 10 डजन, तो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन मतलब 120 बुक्स। उनको तुरंत 1 डजन इक्वल्स पे चेंज करते जाओ। 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, यानी कितनी हो गई, 96 हो गई। 96 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स, यानी फिर से 120 आ जाएगा। अब क्या है, ये जो बुक्स हैं बुक शॉप पे, उनकी हर एक की कॉस्ट भी है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बताना है जो कि रिसीव होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस विल बी द अमाउंट, ऐसे ही होगा। सारी किताबों का सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई का मतलब जो केमिस्ट्री वाली हैं उनका 80 रुपीज़ है, 80 ईच SP, और जो दूसरी वाली है वो कितना है, 60 ईच है, और तीसरे वाले का कितना है, 40 ईच है। तो ऐसे करके बताना है कि टोटल अमाउंट कितना नहीं, वही बना दो। बुक्स के लिए रो मैट्रिक्स ले लो। देखो पहले केमिस्ट्री की बुक्स लिखी, फिर फिजिक्स की लिखी, फिर इकोनॉमिक्स की लिखी, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या है, ये है 3:1, तुमने रो मैट्रिक्स लिया है। अब अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो जो अगला वाला है ना, उसका यहाँ पर ये कितना आना चाहिए, पार्ट 1 आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, अच्छा इसने बोला है कि टोटल अमाउंट, तो अब यहाँ पर सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, 3:1 नहीं है, क्या है 1:3 है, 1:3 का रो मैट्रिक्स बनाया ना। तो नेचुरली इस वाले में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अच्छा अमाउंट तो एक सिंगल अमाउंट आएगा ना, लेट अमाउंट भी एक्स, तो ये कितना आएगा, कितने पैसे मिले टोटल उसे। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है अगला नंबर ये 1 ही होगा, क्योंकि 1:1 से ये बनता है। और वो तो वैसे भी समझ ही रहे हो कि सभी का सेलिंग प्राइस लिखना है। तो 120 जो पहले वाला है वो मैंने C के लिए लिखा है, ये मैंने P के लिए लिखा है, मैंने E के लिए लिखा है। तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होता है तो 120 के साथ 80 आएगा। ये हो गया केमिस्ट्री के लिए, फिर फिजिक्स के लिए आएगा, और फिर किसके लिए आएगा, इको के। बस मल्टीप्लाई कर दो एक्स आ जाएगा। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 120 इंटू 80, 96 का 60 से होगा, 120 का 40 से होगा, और ये इज इक्वल टू एक्स। बस वैल्यू निकाल के बराबर कर दो तो एक्स आ जाएगा, इतना सा करना है आपको। एक्स इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू है, दिस इज द अमाउंट दैट
द बुक सेलर विल गेट। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। लैंग्वेज पढ़ के लगता है पता नहीं क्या पूछ रहा है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं, आसान है। फिर भी ये जो आखिरी के क्वेश्चन हैं 18 से 22, यही इसमें अच्छे सवाल हैं, बाकी तो क्या है, ईजी हैं क्वेश्चन। इन्हीं को रिपीट कर लेना जब भी बोर्ड वगैरह के लिए पेपर देने जाओ तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जब भी कल है परसों है, वॉट एवर। और